Hello friends, today we will discuss about the LTI systems, and here in LTI systems we will study about impulse response, convolution integral, step response and some numerical based on convolution for continuous time systems. First of all, what is LTI system? LTI system is basically linear time invariant system, a system which is linear. Input output relationship is linearly behaving, a system which is time invariant, whose output will not change according to time. Now our main focus is to find a solution for this LTI systems first. हमें इन LTI systems का first solution find out करना, then we can use this solution to approximate non-linear time systems. जो भी मेरे पास नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम या टाइम वेरिएंट सिस्टम्स होंगे उनके ऊपर हम इन सॉल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हैं. दोनों में से कुछ भी हो सकता है सिस्टम हमारे पास, नॉन लीनियर भी हो सकता है या टाइम इनवेरिएंट या टाइम वेरिएंट सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल हो सकता है. तो सिंपली फर्स्ट आवर फोकस इज टू फाइंड solution for these LTI systems, then we can use this solution to approximate our non-linear time variant systems. So first part is impulse response. Now what is response? Response means output and excitation means input. जो भी हम अपने सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं मीन्स वी आर एक्साइटिंग आवर सिस्टम विद दैट इनपुट, and what we are getting as a output, that is our response. Suppose now we have this system, treated this system as a black box. We do not know anything about this system, uh, hence this system is producing a output, that is yt, means it is a response of my system, and simply we are applying a xt as a input, means it is a excitation to my system. Now suppose if we apply this xt as a delta t, delta t is our impulse signal. Suppose xt is our delta t and delta t is our impulse signal. Simply we are applying impulse signal as a input to my system, impulse signal to my system, then we are getting a output yt, that will be a impulse response of my system, means to impulse signal as a input, my output will be a impulse response of my system. Now our second aim is to find the parameters of our system, because we have treated our system as a black box, means we need to find its behavior, how this system will behave. So simply we apply a impulse signal to know the behavior of our black box. Simply suppose this is our system and we are treating it as a black box. Black box means we do not know anything about this system, how it is going to behave. So simply we have to find a output of this system, and we are applying a discrete input to this system x of n. And x of n को अब हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, we are treating x of n is equal to delta of n. Delta of n is our impulse signal. Impulse signal is one unit impulse signal. It is one only for a one time instant, कि सिर्फ एक टाइम इंस्टेंट के लिए इसकी एम्पलीट्यूड वन होगा, अदरवाइज फॉर ऑल टाइम इंस्टेंसेस इसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा. तो मीन्स सिंपली हम अगर इस सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं और वाई एन आउटपुट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और वाई एन अब हमारे पास क्या होगा, इट विल बी अ ट्रांसफर फंक्शन और सॉरी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ माई सिस्टम. तो अब इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम अननोन रिस्पॉन्स टू नॉन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेंगे. तो हम सेकंड इस अननोन से अननोन सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड एक और सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कैसे जो इसका हमारे पास आउटपुट रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास सेकंड सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स बन जाएगा. तो सपोज नाउ हम जो डेल्टा एन अप्लाई कर रहे हैं फॉर एन इज इक्वल टू जीरो अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स डेल्टा एन माइनस जीरो इज नाउ इक्वल टू वन. मीन्स कि जब मेरे पास एन इज इक्वल टू जीरो है, करंट पोजिशन है, तब सिर्फ मेरे पास एम्पलीट्यूड डेल्टा एन का वन होगा, अदरवाइज फॉर ऑल वैल्यूज मेरे पास डेल्टा एन जीरो होगा. अब इस डेल्टा एन की एम्पलीट्यूड वन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद ब्लैक बॉक्स पैरामीटर.
अगर ब्लैक बॉक्स के पैरामीटर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी आउटपुट क्या आती है वो हम नोट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट जो आउटपुट आएगी दैट इज एच ऑफ जीरो, एन की वैल्यू जीरो है। अगर सपोज ये मेरे पास वन आ जाती है तो मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट पैरामीटर है वो मुझे मिल गया अपने सिस्टम का, दैट इज वन। तो हम इसको अपने सिस्टम में लिख सकते हैं कि इट इज वन, कि हमारे पास ब्लैक बॉक्स का फर्स्ट पैरामीटर हमारा वन होना चाहिए। नाउ अब हम अपने सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं बाय वन। तो मेरे पास अब सिग्नल क्या हो जाएगा, डेल्टा एन माइनस वन। तो मेरे पास एम्पलीट्यूड वन कब मिलेगा, व्हेन एन इज इक्वल टू वन। और इसके अलावा हर एक मेरे पास एन की वैल्यूज के लिए एम्पलीट्यूड जीरो होगा मेरे पास इम्पल्स सिग्नल का। तो मीन्स अब मैं इस सिग्नल को ब्लैक बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए, एच ऑफ वन, जब एन इज इक्वल टू वन है मेरे पास। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है अब टू, तो सिंपली मुझे पता चलेगा कि जो सेकंड पैरामीटर है मेरे सिस्टम का दैट इज टू। अब मैं फिर से इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, एन माइनस टू के लिए अप्लाई करके देखता हूँ, ये हमेशा वन होगा। वन बाय वन मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वन होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एच ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री। तो थर्ड पैरामीटर मुझे मिल गया थ्री, देन फोर, एन माइनस थ्री पे वन, एच ऑफ फोर इज एच ऑफ थ्री इज इक्वल टू फोर, नेक्स्ट पैरामीटर मुझे मिल गया फोर। अब मैं इस सेम वे में इसको अप्लाई करता जा रहा हूँ टिल मेरी माई लास्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा। माई लास्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा इज पोज एच ऑफ नाइन, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है टेन। तो सिंपली मैं अपनी वैल्यूज चेक कर सकता हूँ जो सिस्टम की मुझे अननोन बिहेवियर से नॉन बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। सिंपली चेक कर सकते हो कि एक मेरे पास अननोन बिहेवियर से नॉन बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ अब इस नॉन बिहेवियर को हम रिस्पॉन्स काउंट कर सकते हैं एच एन, जो कि हमने अपने इम्पल्स सिग्नल के थ्रू हमने अचीव किया। तो अब मैं इस सिस्टम के ऊपर कोई अलग इनपुट अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज मैं अब इनपुट यहाँ पे एक्स एन जो है वो थ्री प्रोवाइड कर दूँ, सॉरी सिक्स प्रोवाइड कर दूँ। सपोज जो मेरे पास इनपुट है एक्स एन, मैं इसे सिक्स दे दूँ, तो मेरे पास आउटपुट वाई एन क्या आनी चाहिए, आउटपुट वाई एन मेरे पास क्या होगी, नाउ इट इज़ अ टेबल ऑफ सिक्स। सिंपली अब हम इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर कोई भी अननोन इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, और उस इनपुट के अकॉर्डिंगली हम अपना वाई एन आउटपुट जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन इज वर्ड एक्स एन star star hn, this star operator is basically convolution operator। तो सिंपली हमने बाय यूजिंग इम्पल्स सिग्नल अपने एक अननोन सिस्टम का बिहेवियर पहले स्टडी किया, उसका जो बिहेवियर मेरे पास आ जाता है, अब उस नॉन बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हम किसी भी अननोन इनपुट या नॉन इनपुट के अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। Hence, any output yt can be expressed as a yt is equal to integration from minus infinity to infinity x of tau multiplied by h of t minus tau d of tau. And also we know that any any continuous time input signal can also be represented as a linear combination of input signal and shifted impulse signal, that is minus infinity to infinity integration of x of tau multiplied by delta t h minus tau, that is equal to x of t. Also we can check here that integration from minus infinity to infinity x of t delta t is dt is equal to x of नॉट, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी t इज इक्वल टू नॉट पे उसके इक्वल होगा। सेकेंड टर्म टू डिस्कस हियर इज कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। Convolution integral is basically yt is equal to xt starred with ht. This star is a convolution operator, and mathematically we can define this convolution as integration from minus infinity to positive infinity x of tau multiplied by h t minus tau d tau. That is basically mathematical expression of our convolution. Now look
how we can solve this convolution. First step, we are given with two signals. हमें दो signals given होंगे xt and h of t. तो first convert these two signals into x of tau simply by replacing tau instead of t, x of tau and h of tau. In my second step, obtain a time reversal signal h of minus tau by applying time reversal property. तो जो सेकंड सिग्नल है मेरे पास h of tau, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू h of minus tau. Now apply shift property on second signal. We have to shift this second signal by a factor t and apply this shifting property to obtain this signal h of t minus tau. In my next step, simply get this product x of z into h of t minus z and integrate it over all values of tau to produce a single output value of yt. सिर्फ एक सिंगल आउटपुट वैल्यू के लिए हमें इसको प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ टाउ. एंड इन माय लास्ट स्टेप we have to repeat these three steps from B to D to obtain a complete set of yt for all values of t from minus infinity to positive infinity. Simply repeat all these steps till my all values of t. Our third topic is step response. The step response st of a continuous time LTI system is defined to be response of a system when input is unit step signal. Now suppose our xt is a unit step signal. Xt is equal to u of t. Then our st is equal to ut convolution with h of t. So simply it is equal to minus infinity to infinity integration u of tau multiplied by h t minus tau d of tau. After simplification, we will get h t minus tau integration from minus infinity to infinity t of tau, as we know that ut is equal to 1 in the range 0 to infinity. तो सिंपली हम ut का जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और जो हमारी इंटीग्रेशन की रेंज है वो इंटीग्रेशन की रेंज मेरे पास कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी. तो सिंपली नाउ पुट t minus tau is equal to p, and if we take derivative of this we will get minus d of tau is equal to d of p. Simply replace these terms in our expression. Now st step response is equal to minus t to minus infinity जो मेरी रेंज हो जाएगी इंटीग्रेशन की h of p to d of p. नाउ सिर्फ चेंज कर दें हम अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट तो ये नलीफाई कर देगा हमारे माइनस साइन को. तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी नाउ इंटीग्रेशन की फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एच ऑफ पी डी पी. Therefore ht can be obtained by taking derivative of this st. तो जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स में रिलेशनशिप है दैट इज बेसिकली इफ वी take derivative of st with respect to dt we will get our impulse response. Now let us look how we can use this convolution to find output of a system. So simply we are given with a numerical. Calculate the output yt of the system to input xt is equal to ut if the impulse response of system is given by st is equal to e की पावर माइनस at ut and a is greater than 0. तो सिंपली हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है और उसमें हमें एक इनपुट गिवन है. इनपुट क्या गिवन है दैट इज xt. हमें इनपुट गिवन है xt इज इक्वल टू ut स्टेप इनपुट सिग्नल और हमें सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है h of t. इट इज e की पावर माइनस at
यू टी। अगर हम इसका प्लॉट करके देखें सिस्टम, तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए टी यू टी, और इसकी इनपुट हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज स्टेप इनपुट यू टी, और इसके लिए हमें आउटपुट फाइंड आउट करनी है वाई टी। तो सिंपली वी कैन फाइंड आवर आउटपुट वाई टी बाय कॉन्वोल्यूटिंग एक्स टी विद एच ऑफ टी। तो सिंपली वाई टी इज नाउ इक्वल टू एक्स टी convolution with ht. Simply open up integration from minus infinity to infinity x of tau multiplied by h t minus tau. तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x of tau पहले क्रिएट कर लें। x of tau क्या होगा, दैट इज u of tau, सिंपली t को रिप्लेस कर दे बाय tau। सेकेंड h of t को हम क्या ले सकते हैं, h of tau, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस ए टाओ यू ऑफ टाओ। अब शिफ्ट कर दें इस टाओ को, हम टाओ की जगह पे टी माइनस टाओ पुट कर दें, एच ऑफ टी माइनस टाओ विच इज इक्वल टू नाउ ई की पावर माइनस ए टी माइनस टाओ यू टी माइनस टाओ। सिंपली जहाँ पे भी आपको टाओ गिवन है उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे टी माइनस टाओ। Now put these values in our expression. Y it is now integration u of tau, x tau की वैल्यू पुट कर दी हमने, देन e की पावर माइनस a t माइनस टाउ u of t माइनस टाउ d of tau. Now simplify this expression, u of tau e की पावर माइनस a t मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर पॉजिटिव ए ऑफ टाउ यू टी माइनस टाउ डी ऑफ टाउ। सिंपली हमने ओपन अप कर दिया हमारे एक्सपोनेंशियल टर्म को दोनों फैक्टर्स में, ई की पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर ए टाउ। Now take this e की power minus 80 out of this integration, because we are doing our integration with respect to d of tau. So means this e की power minus 80 is a constant term. Then take this out from our integration term. So remaining is e की power minus 80 integration from 0 to infinity e की power a tau u t minus tau d of tau. We have changed this limit from now 0 to infinity. Why? हमने ये रेंज इंटीग्रेशन की 0 टू इन्फिनिटी क्यों चेंज कर दी, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे u ऑफ टाउ फैक्टर था इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 1, और कहाँ से कहाँ तक, इन बिटवीन लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। तो आउटसाइड दिस रेंज जो हमारे पास u ऑफ टाउ का एम्पलीट्यूड है दैट इज 0। तो मीन्स 0 को इससे आउटसाइड रेंज में किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। तो इंटीग्रेशन हमारे पास u ऑफ टाउ की वजह से क्या रह जाएगी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड रिमेनिंग फैक्टर इज ई की पावर ए टाउ multiplied by u t minus tau d of tau. Now simplify again for this u t minus tau, u t minus tau के लिए भी सिंप्लीफाई करें तो हमारी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक रह जाएगी, नाउ इट इज फ्रॉम 0 टू t, बिकॉज u t minus tau is a टाइम रिवर्सल सिग्नल ऑफ आवर u tau. तो जो रेंज है मेरे पास इसके लिए, तो वो रेंज मेरे पास क्या होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू टी। तो सिंपली हम पहले एक्सप्रेशन के थ्रू माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो हमारे पास वैल्यू पहले ही एम्पलीट्यूड 0 था, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक बचेगा, 0 टू टी, जो फाइनल हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा फ्रॉम फर्स्ट यू ऑफ टाउ, वहाँ से हमारे पास रेंज 0 टू इन्फिनिटी, और सेकेंड यू टी माइनस टाउ की वजह से रेंज हमारी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू टी। तो दोनों का कंबाइंड हमारे पास अगर इफेक्ट देखें तो हमारे पास जो रेंज बचेगी वर्केबल दैट इज इन बिटवीन 0 टू टी। तो सिंपली नाउ आवर एक्सप्रेशन इज ई की पावर माइनस ए टी, इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर ए टाउ का, दैट इज सेम ई की पावर ए टाउ डिवाइडेड बाय एंगल, एंगल यहाँ पे क्या है हमारे पास ए, तो ई ए टाउ डिवाइडेड बाय ए, and limits 0 to t. Now simply put limits e की पावर a, e की पावर minus at by a, e at minus e naught. Open up
e minus at multiplied by e at by a minus 1 by a मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस at। सिंपली फर्स्ट एक्सप्रेशन में से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या है 1 बाय a माइनस e की पावर माइनस at डिवाइडेड बाय a। Hence our final expression is 1 by a multiplied by 1 minus e की power minus at. That is our final expression. Also we know that e की power 0 is equal to 1. In our second question, we have to find the convolution and have to plot a signal ft of two functions f1t and f2t। तो हमें जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है f1t, दैट इज व्हाट इट इज 1 इन बिटवीन टाइम वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास मोड ऑफ टी गिवन है दैट इज लेस देन 1, तो मीन्स हमारे पास एम्पलीट्यूड 1 होगा कहाँ से कहाँ तक, इन बिटवीन -1 to 1, and outside this this limit when our mode of t is greater than 1 our amplitude is 0। तो सेकंड सिग्नल हमें क्या गिवन है, अगेन एम्पलीट्यूड 1 है और 0 है। तो एम्पलीट्यूड 1 कब होगा हमारे पास, व्हेन आवर मोड ऑफ टी इज लेस देन 1/2। तो मीन्स मेरे पास रेंज क्या हो जाएगी टाइम की, दैट इज फ्रॉम -1/2 टू +1/2। और 0 कब होगा हमारे पास एम्पलीट्यूड, आफ्टर दिस रेंज when mode of t is greater than 1/2। तो मीन्स आफ्टर दिस रेंज हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा 0। तो सिंपली फर्स्ट प्लॉट दिस टू सिग्नल्स, पहले इन दोनों सिग्नल्स को प्लॉट करके देखें, f12 और f2t को विद रिस्पेक्ट टू t। सिंपली फर्स्ट वन इज f1t एंड सेकेंड इज f2 ऑफ t। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने f1t सिग्नल यहाँ पे प्लॉट किया, इट इज इन बिटवीन -1 टू +1। इनके बीच में मेरे पास एम्पलीट्यूड जो है दैट इज 1। आफ्टर दिस रेंज मेरे पास एम्पलीट्यूड 0 होगा। सेकंड केस में भी हमारे पास सेम सिग्नल प्लॉट होगा, बट अब मेरे पास रेंज क्या होगी टाइम की, फ्रॉम -1/2 टू +1/2। इनके बीच में मेरे पास एम्पलीट्यूड 1 है, एंड आफ्टर दिस रेंज जो मेरे पास एम्पलीट्यूड होगा दैट इज 0। तो अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि मुझे f1t को कन्वर्ट करना होगा इनटू f1 ऑफ टाउ। तो सिंपली मैं t की जगह रिप्लेस कर देता हूँ टाउ। तो फर्स्ट सिग्नल हो जाएगा f1 टाउ, रेंज t की फ्रॉम -टाउ टू पॉजिटिव टाउ। सिमिलरली इन सेकेंड हो जाएगा मेरे पास f2 ऑफ टाउ, अगेन रेंज फ्रॉम -टाउ टू पॉजिटिव टाउ। अब इन दोनों में से एक सिग्नल को मुझे क्या करना है, इन दोनों में से एक सिग्नल को मुझे फ्लिप करना होगा। फर्स्ट दो सिग्नल है मेरे पास, दोनों में से किसी एक को भी आप फ्लिप कर सकते हो, बट मैं सेकंड सिग्नल को फ्लिप कर रहा हूँ। तो सेकंड सिग्नल की फ्लिपिंग क्या हो जाएगी, f2 टाउ से मुझे इसको कन्वर्ट करना इनटू f2 ऑफ माइनस टाउ। तो फ्लिपिंग मीन्स कि मुझे अपने सिग्नल को टाइम में रिवर्स करना है। तो टाइम रिवर्सल मीन्स जो एम्पलीट्यूड मेरे पास -1/2 पे है, वो एम्पलीट्यूड मेरे पास अब 1/2 पे प्लॉट होगा। जो 1/2 पे एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास -1/2 पे प्लॉट होगा, और जो एम्पलीट्यूड 0 पे है या इन बिटवीन दिस टू रेंज है, वो अपना टाइम रिवर्सल पूरा हो जाएगा उनका। तो इस केस में हमारे पास सिग्नल को अगर हम टाइम रिवर्सल भी कर दें तो हमारे पास सेम ही सिग्नल प्लॉट होगा। आफ्टर दैट हमें अपने सिग्नल को शिफ्ट करना है बाय अ फैक्टर टी। तो फैक्टर टी हमारे पास क्या आ जाना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल की रेंज है, इससे आउट हम सिग्नल को कर लें। तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड बाय अ फैक्टर टी। तो अब मैंने टी फैक्टर यहाँ पे क्या ले लिया कि ये दोनों सिग्नल एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, इससे टोटली आउट हो जाए। तो मैं अब सिग्नल को प्लॉट कर रहा हूँ फ्रॉम -1 टू -2। चेक कर सकते हो जो इस फर्स्ट सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस सिग्नल का एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अब मैं सिग्नल प्लॉट कर रहा हूँ इन बिटवीन -1 टू 2। तो मैंने कंप्लीट सिग्नल को शिफ्ट कर दिया बाय अ फैक्टर टी माइनस टाउ। पहले इसकी जो सेंटर पोजीशन थी मेरे पास 0 थी सिग्नल की, आप चेक कर सकते हो। अब जो इसकी सेंटर पोजीशन है वो कहाँ पे आ गई, -3/2 पे। तो टोटल हमने अपना सिग्नल शिफ्ट कर दिया बाय अ फैक्टर 1/2।
towards my left hand side of signal. That is basically called shifting of signal. Now after that, move this second signal over first signal and find the overlapping area कि हमारे पास कितना area overlapping में आ रहा है, and we have to find this overlapping relationship to find our final output signal f3 of t. So now steps required to solve this numerical. First step is to find the starting point of our final signal f3 of t. जो भी मेरे पास f3 of t होगा, मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट निकालना होगा कि टाइम में मेरा f3 t of 3 कहाँ से स्टार्ट होगा. तो उसके लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, f3t should be equal to starting point of my f1t plus starting point of my f2t. जो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट है f1t के और f2t के, इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स को हम एडअप कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल सिग्नल होगा f3t उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा. तो फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा t1, सेकंड का t2. तो हमने अपने सिग्नल को देखा था कि फर्स्ट सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, -1 से 1 के बीच में हमारे पास सिग्नल प्लॉट किया था हमने. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -1. सेकंड सिग्नल हमने कहाँ से कहाँ तक प्लॉट किया था, इन बिटवीन -1/2 टू +1/2. तो मीन्स सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -1/2. तो ओवरऑल अब मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा f3t का, दैट इज -3/2. सिंपली दोनों को करके देख सकते हो ऐड, तो मेरे पास फाइनल जो स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी दैट इज -3/2. सेकंड हमें लेंथ निकालनी है कि हमारे पास जो फाइनल सिग्नल होगा f3t उसकी लेंथ कितनी होगी. तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज लेंथ ऑफ f3t इज इक्वल टू लेंथ ऑफ f1t प्लस लेंथ ऑफ f2t. तो दोनों की लेंथ हम ऐड कर सकते हैं. जो फर्स्ट सिग्नल की लेंथ मेरे पास क्या है, तो फर्स्ट सिग्नल मुझे अवेलेबल है फ्रॉम -1 टू +1 और सेकंड हमें अवेलेबल है फ्रॉम -1/2 टू +1/2. तो मीन्स फर्स्ट की लेंथ क्या होगी 2, -1 टू 1. तो टोटल लेंथ फर्स्ट सिग्नल की 2 और सेकंड सिग्नल की लेंथ कितनी हो जाएगी 1, फ्रॉम -1/2 टू +1/2. तो ओवरऑल लेंथ मेरे पास क्या आ जानी चाहिए f3t की, दैट इज 3. and in our next step we have to find the ending point of our f3t कि हमारे पास f3t का एंडिंग पॉइंट क्या आना चाहिए. तो एंडिंग पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया f3t का उसमें हम लेंथ को ऐड कर दें. जो भी हमें f3t की लेंथ मिली उसको हम ऐड कर दें इन आवर स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या मिला था f3t का, दैट इज -3/2 और हमें लेंथ कितनी मिली 3. तो अल्टीमेटली एंडिंग पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा +1.5 और 3/2. तो अब जो हमें अपना फाइनल सिग्नल प्लॉट करना है f3t वो किस टाइम डोमेन के बीच में प्लॉट करना है, फ्रॉम -3/2 टू +3/2. Now in our fourth step, overlap the initial part of our signal. जो हमारे पास सेकंड सिग्नल है उसको फर्स्ट सिग्नल के ऊपर ओवरलैप करें और हम जो लिमिट्स चाहिए हमारे पास ओवरलैपिंग की उसके लिए हम एक t वेरिएबल ऐड कर सकते हैं इन आवर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ f2 माइनस टाउ. तो सिंपली फर्स्ट प्लॉट करके देखें हम अपना, हमारे पास आउटपुट सिग्नल क्या होगा ओवरलैपिंग के लिए. तो फर्स्ट जो मेरा सिग्नल है दैट इज इन बिटवीन -1 टू 1. तो फर्स्ट सिग्नल हम प्लॉट कर लें इन बिटवीन -1 टू 1, दैट इज f1 ऑफ टाउ. देन सेकंड सिग्नल जो हमारा शिफ्टेड वर्जन है, हमारे पास शिफ्ट हमें उसे प्रोवाइड कर दी और ओवरलैपिंग चेक की. पहले हमारे पास शिफ्ट कहाँ से कहाँ तक था, फ्रॉम -1 प्लस हमारे पास जहाँ तक हम उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर पाए थे, उसके बाद हम इसको टुवर्ड्स राइट हैंड साइड 1 बाय 1 शिफ्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट शिफ्टिंग जो हमारे पास आ रही है और हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ओवरलैपिंग क्या होगी. तो ये मेरे पास सेकंड सिग्नल हो जाएगा f2 ऑफ t माइनस टाउ और चेक कर सकते हैं कि इनके बीच में ये एरिया मेरे पास ओवरलैप एरिया है. अब तो ओवरलैपिंग एरिया की लिमिट मेरे पास क्या होनी चाहिए, ओवरलैपिंग मेरे पास स्टार्ट हो रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू -1 से और एंड हो रहा है एट t इज इक्वल टू -1/2.
बट मेरे पास ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ओवरलैपिंग एरिया है, तो हमें इस टाइम टी वेरिएबल को इन दोनों टर्म में ऐड करना होगा। तो मेरी फाइनल रेंज क्या हो जाएगी, फ्रॉम -1 टू -1/2 प्लस टी। एट -1 टी की वैल्यू क्या होगी, 0। एट -1/2 पे मेरे पास टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। तो टोटल इंटीग्रेशन की मेरे पास रेंज हो जानी चाहिए फ्रॉम 1 टू -1/2 टू 1/2 प्लस टी। तो सिंपली इसके लिए अब मुझे अपनी ओवरलैप्ड आउटपुट फाइंड आउट करनी है, दैट इज वाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू -1/2 प्लस टी। मेरे पास जो ओवरलैपिंग एरिया है उसकी लिमिट हो जाएगी, कहाँ से ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई और कहाँ तक मेरे पास ओवरलैपिंग फिनिश हो रही है। तो दोनों का इसके बाद एम्पलीट्यूड, दो सिग्नल है मेरे पास, F1 टाउ मल्टीप्लाइड बाय F2 टी माइनस टाउ। तो दोनों का मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, तो फर्स्ट सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम चेक कर सकते हैं, दैट इज 1 इन बिटवीन दिस रेंज। तो हम यहाँ 1 पुट कर दें। सेकंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी 1 है, तो दूसरे का एम्पलीट्यूड भी हम 1 पुट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ टाउ। मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टाउ लिमिट -1 टू -1/2 प्लस टी। सिंपली पुट दिस लिमिट्स इन टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस टी माइनस माइनस प्लस 1। तो y of t is now what, it is 1/2 माइनस टी। और सेकंड इसको कैसे लिख सकते हो, t प्लस 1/2। तो इस टर्म को हम चेक कर सकते हैं, इट इज अ कांस्टेंट प्लस रैम्प। y t is equal to t is basically what, रैम्प प्लस अ कांस्टेंट टर्म 1/2। और रेंज क्या होगी इसकी, फ्रॉम -1/2 टू -1/2 प्लस टी। तो सेकंड अब हमें चेक करना है कि हम एक कंप्लीट ओवरलैप बना लें। फर्स्ट स्टेप में इनिशियली ओवरलैपिंग, सेकंड स्टेप में हम कंप्लीट ओवरलैपिंग एंड थर्ड स्टेप में हम डिक्रीजिंग ओवरलैपिंग चेक करेंगे। तो इस सेकंड स्टेप में अब हम क्या करें कि हम एक कंप्लीट ओवरलैपिंग बना लें। कंप्लीट ओवरलैपिंग कहाँ बनेगी, जब हमारे पास फर्स्ट सिग्नल का 0 पॉइंट और सेकंड सिग्नल का 0 पॉइंट दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो हम फिर से एक सिग्नल जनरेट करके देखें कंप्लीट ओवरलैपिंग के लिए कि मेरे पास टाइम एक्सिस है, एम्पलीट्यूड एक्सिस F3t। अगेन सिग्नल प्लॉट कर रहे हैं, फर्स्ट हम F1 टाउ इन बिटवीन -1 टू +1 F1 टाउ। और सेकेंड सिग्नल अब हमने शिफ्ट कर दिया अगेन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और अब हम देख सकते हैं कि दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया। तो सेंटर पॉइंट ओवरलैप करने से हमारे पास दोनों सिग्नल एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब जो ओवरलैपिंग एरिया मेरे पास आएगा बिटवीन दिस टू सिग्नल्स, दैट इज फ्रॉम -1/2 टू +1/2। अगेन हम दोनों लिमिट्स में प्लस टी ऐड कर सकते हैं टू शो इंक्रीजिंग ओवरलैपिंग एरिया, कि मेरे पास ओवरलैपिंग एरिया जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मेरे पास लिमिट्स क्या हो जाएंगी इंटीग्रेशन की, -1/2 प्लस टी टू +1/2 प्लस टी। सिंपली दोनों में मैं टी ऐड कर दिया। और अब हम अगेन इसके लिए अपना y ऑफ टी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो y ऑफ टी अगेन इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम -1/2 प्लस टी टू +1/2 प्लस टी। एम्पलीट्यूड अगेन दोनों का 1 है, फर्स्ट सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड 1, सेकंड का भी एम्पलीट्यूड 1। डी ऑफ टाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टाउ आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टाउ लिमिट्स -1/2 प्लस टी टू 1/2 प्लस टी। सॉल्व 1/2 प्लस टी प्लस 1/2 माइनस टी, प्लस टी माइनस टी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 1। तो इन बिटवीन दिस कंप्लीट ओवरलैपिंग तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 1। नाउ चेक दिस लास्ट ओवरलैप। टू चेक दिस लास्ट ओवरलैप हमें अगेन क्या करना है कि फर्स्ट सिग्नल एज इट इज प्लॉट कर लें F1 टाउ, और सेकंड सिग्नल को हम एग्जिट पॉइंट पर ओवरलैपिंग चेक कर लें, जहाँ पे हमारे पास सेकंड सिग्नल का सेंटर पॉइंट और फर्स्ट सिग्नल का एग्जिट पॉइंट ओवरलैप करें, उस पॉइंट पे हम फाइनल ओवरलैपिंग चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिग्नल F1 टाउ, सेकंड F2 टी माइनस टाउ।
तो फर्स्ट सिग्नल का मेरे पास एग्जिट पॉइंट क्या होगा एट t इज इक्वल टू 1, और सेकंड सिग्नल का हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या होगा नाउ एट 1 दोनों। तो मेरे पास ये ओवरलैपिंग एरिया होगा इन बिटवीन 1/2 टू 1। तो अगेन एड t इन माई लिमिट्स। तो मेरे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 1/2 प्लस टी टू फाइनल 1 तक। तो अगेन हम आउटपुट कैलकुलेट कर लें इस ओवरलैपिंग के लिए, दैट इज लिमिट 1/2 प्लस टी टू फाइनल वैल्यू 1। एम्पलीट्यूड अगेन फर्स्ट सिग्नल का 1 है, सेकंड सिग्नल का भी 1 है। डी ऑफ टाउ इंटीग्रेशन टाउ लिमिट 1/2 प्लस टी टू फाइनल 1, सिंप्लीफाई 1 माइनस 1/2 माइनस टी, अल्टीमेटली 1/2 माइनस टी। तो हमें टोटल 3 आउटपुट्स मिली। फर्स्ट हमने चेक किया कि जब हम एंट्री पॉइंट पर अपना ओवरलैपिंग चेक कर रहे हैं, देन हम कंप्लीट ओवरलैपिंग चेक कर रहे हैं इन बिटवीन सिग्नल्स, दोनों का 0 0 पॉइंट हमने मैच कर लिया है। एंड एग्जिट पॉइंट पे हमारे पास जब फर्स्ट सिग्नल का एग्जिट पॉइंट और सेकंड सिग्नल का सेंटर पॉइंट दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, तीनों टाइम पे हमने अपनी ओवरलैपिंग चेक की और 3 आउटपुट्स क्रिएट की। y1 दैट इज t प्लस 1/2, चेक कर सकते हैं इट इज कांस्टेंट प्लस पॉजिटिव रैम्प, जो मेरे पास रैम्प है t दैट इज पॉजिटिव। सेकेंड आउटपुट yt हमारे पास आई थी 1, सिंपली कांस्टेंट वैल्यू है। थर्ड आउटपुट हमारे पास आई y3t इज इक्वल टू 1/2 माइनस टी, चेक कर सकते हैं इट इज कांस्टेंट टर्म y 1/2। एंड साथ में हमारे पास क्या है एक रैम्प सिग्नल है, और रैम्प का स्लोप क्या है नेगेटिव स्लोप। तो अब मुझे अपने फाइनल सिग्नल को एफ टी को प्लॉट करना है, दैट इज नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 सिग्नल्स y1t प्लस y2t प्लस y3t। तो सिंपली ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पता है कि फर्स्ट सिग्नल का हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या निकाला था। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास था -3/2, और हमारे पास इसका एंडिंग पॉइंट क्या था दैट इज 3/2। तो हमें अपने सिग्नल को प्लॉट करना है इन बिटवीन -3/2 टू पॉजिटिव 3/2। 3/2 मेरे पास क्या होगा माई एंडिंग पॉइंट। तो इनके बीच में अपने सिग्नल की लेंथ चेक कर सकते हो, 3 आएगी हमारे पास। तो फर्स्ट y1t को हमें प्लॉट करना है, तो y1t हमारे पास कहाँ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरे पास -3/2 होगी, और एंडिंग पॉइंट क्या होगी दिस 1/2। तो हम इसको -3/2 से -1/2 तक हमें इसे प्लॉट करना है, और इसका प्लॉटिंग क्या होगी इट इज़ द रैम्प सिग्नल। तो मुझे इसको एज अ रैम्प सिग्नल प्लॉट करना है। और इन बिटवीन दिस पॉजिटिव नेगेटिव 1/2 टू पॉजिटिव 1/2 मेरे पास एम्पलीट्यूड कितना है 1। सेकेंड सिग्नल y2 क्या होना चाहिए 1। तो मैं इसको y2 को 1 प्लॉट करूंगा इन बिटवीन -1/2 टू पॉजिटिव 1/2। एंड आफ्टर दिस मुझे अपना थर्ड सिग्नल प्लॉट करना है y3 ऑफ t, अगेन इन बिटवीन रेंज 1/2 टू 3/2। और मेरे पास अब स्लोप किस टाइप का होना चाहिए नेगेटिव स्लोप, रैम्प सिग्नल प्लॉट करना है विथ नेगेटिव स्लोप। तो सिंपली नेगेटिव स्लोप के साथ आप यहाँ पे रैम्प सिग्नल प्लॉट कर दें। Now check in this animation how this overlapping is. Now we have two functions, इन दोनों फंक्शंस को हम ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग आप चेक कर सकते हो कि हमने पहले अपने सिग्नल को शिफ्ट किया, कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया हमने इसको, कि जो भी मेरे पास फर्स्ट सिग्नल था गिवन, उस सिग्नल को हमने अपना फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ओवरलैप करके देखा कि इस पोजीशन पे ओवरलैपिंग क्या होगी। तो दोनों सिग्नल मेरे पास 0 से स्टार्ट थे इस केस में, तो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0। सेकंड अब मेरे पास ओवरलैपिंग एरिया इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ओवरलैपिंग एरिया इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, और कैसे इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू अ रैम्प सिग्नल। तो कब तक ये मेरे पास रैम्प सिग्नल मुझे मिलेगा टिल मेरे पास कंप्लीट ओवरलैपिंग ना आ जाए। अब चेक कर सकते हैं यहाँ तक मेरे पास ये कंप्लीट ओवरलैपिंग है। तो आफ्टर दैट मेरे पास अब दोनों का सिग्नल ड्यूरेशन चेक कर सकते हो कि 0 to 1 है, तो 0 to 1 में भी मेरे पास यहाँ पे रैम्प सिग्नल मुझे मिला। आफ्टर दैट एक कंप्लीट ओवरलैपिंग शो कर रहा है मेरे पास कि यहाँ पे मेरे पास जो ओवरलैपिंग है दैट इज कंप्लीट ओवरलैपिंग। तो कंप्लीट ओवरलैपिंग कब तक रहेगी, जब तक ये सेकंड ब्लॉक
इस फर्स्ट ब्लॉक के अंदर रहेगा, तो मीन्स ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आएगा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। चेक कर सकते हैं इन बिटवीन दिस ओवरलैपिंग मेरे पास अगेन बेशक टाइम मेरे पास इंक्रीज कर रहा है बट ओवरलैपिंग मेरे पास कांस्टेंट है, सेम एरिया हमारे पास हमें मिल रहा है। एंड आफ्टर दिस पॉइंट जो मेरा एग्जिट पॉइंट होगा, आफ्टर दिस पॉइंट मेरे पास फिर से डिक्रीजिंग क्रैम्प स्टार्ट हो जाएगा। अगेन मेरे पास ओवरलैपिंग डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, और जितनी मेरे पास ओवरलैपिंग डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई उसी के अकॉर्डिंगली मेरे पास मेरा एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो मीन्स मुझे एक रैम्प डिक्रीजिंग रैम्प टाइप सिग्नल मिल रहा है। और टोटल ड्यूरेशन आप चेक कर सकते हो मेरे सिग्नल की कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 3। तो फर्स्ट की लेंथ कितनी थी 2 और सेकंड की लेंथ है 1। तो टोटल मेरे पास ओवरऑल फाइनल सिग्नल की लेंथ है 3। Thank you. I hope now you are able to solve numericals based upon uh, convolutions, continuous time convolution of my signals.